Students, in the last video you have seen how to find the solution of one-dimensional wave equation. That is, I am going to recap one more times. Solution of one-dimensional wave equation with the given बाउंड्री कंडीशन. कल प्रीवियस वीडियोस में आपने सिर्फ सोल्यूशन देखा था हम कैसे निकालेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम उससे आगे का पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा आपको कि अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन हो तो हम कैसा सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. बाउंड्री कंडीशन गिवन होगा तो आप सभी को पता है बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. So we know that one-dimensional wave equation भी आप सभी को पता है del 2 y upon del t square is equal to c square del 2 y upon del x square. ये आपको पता है. इसका बाउंड्री कंडीशन आपको कल बताया गया था प्रीवियस वीडियोस में विद द बाउंड्री कंडीशन y 0t is equal to 0 and y lt equal to 0. शो प्रीवियस वीडियोस में सिर्फ आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो इसकी प्रॉब्लम के नेचर को शो करता है. आज हम बताएंगे कि हम उस सोल्यूशन को लेते हुए उस पर बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन टू द गिवन सोल्यूशन. सो नाउ the appropriate solution which explain the nature of the problem B yxt is equal to c1 cos px plus c2 sin px c3 cos cpt plus c4 sin cpt. We know that in previous videos we have discussed about this how to find why this is the solution of this. आपको बताया जा चुका था पीछे कि यही इसका सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दिया गया प्रॉब्लम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का है और जहाँ तक आप सभी जानते हैं वेव इक्वेशन वाइब्रेटिंग नेचर का होता है, तो सॉल्यूशन भी वाइब्रेटिंग नेचर का होना चाहिए. वाइब्रेटिंग नेचर का कब होगा, जब उसके सॉल्यूशन में पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे. पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि सॉल्यूशन में पीरियोडिक फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब उसमें पीरियोडिक फंक्शन होंगे. तो जो तीनों केस हमने डिस्कस किया था, केस 1 whenever k greater than 0, whenever k less than 0, whenever k equal to 0. So you have
we have uh, derived this relation whenever the value of k constant be negative, that is minus p square, the nature of the this solution is explain briefly the nature of the problem. So I am going to discuss how to apply the given boundary condition as well as we can say initial condition to this problem. Okay students, so now this is second equation. Now applying boundary condition, we have now applying boundary condition, we have, just see, whenever x is 0, y is 0. In this equation, whenever x becomes 0, first boundary condition is x is equal to 0, this gives y equal to 0. So equation second becomes what? 0 equal to C1 cos 0, because of p into 0 becomes 0, plus C2 sin 0, p into 0. Okay, so now here C3 cos CPT, because of this term doesn't contain x, plus C4 sin CPT. Okay, now this gives, this is 0, and as you know cos 0 be 1 and sin 0 be 0, so this becomes C1 C3 cos CPT plus C4 sin CPT. 0 is equal to C1 C3 cos CPT plus C4 sin CPT. यहां से आप देखें, यहां से आपको देखने में ऐसा दिख रहा होगा कि जब आपने इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया कि whenever x is equal to 0 y equal to 0, तो ये मिला। अब यहां क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि दो प्रोडक्ट, C1 एक प्रोडक्ट है, दूसरा टर्म है C3 समथिंग, C3 cos CPT plus C4 sin CPT, दूसरा टर्म है। दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। So either this may be 0 or this may be 0. From here you can say that this term does not 0. This term will not be 0. Why? Because of, if this term becomes 0, so whole solution becomes 0. Because of ये पूरा का पूरा solution this into this है, C1 cos px plus C2 sin px in one bracket, and in other bracket C3 cos CPT plus C4 sin CPT in other bracket. ओके, सो जब यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में सोल्यूशन है, तो अगर कोई भी एक 0 होगा तो पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट यहाँ यह टर्म 0 नहीं होगा। दूसरे टर्म पे सोचते हैं, अगर C1 0, if C1 becomes 0, so सोल्यूशन पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें
C1 जीरो होने से ये टर्म जीरो होगा, लेकिन पूरा का पूरा सोल्यूशन दिस इंटू दिस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए यहां से इस इक्वेशन से आप क्या लिखेंगे, देखिए इस इक्वेशन से आप ये लिखेंगे, फ्रॉम हियर C1 becomes 0 but C3 cos CPT plus C4 sin CPT does not 0। ऐसा इसलिए कि अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 2 becomes, so equation 2 becomes, देखें yxt इक्वल टू C1 जीरो हो गया, क्या मिला C2 sin px, और क्या मिला C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। ओके स्टूडेंट्स, शो दिस बी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो। अभी हमने एक कंडीशन को अप्लाई किया है, जब हम दूसरे कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब दूसरा कंडीशन अप्लाई होगा, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब x l है, x मीन्स लेंथ क्या है, जब l है तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो है। मीन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ x इक्वल टू जीरो पे y जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और ये स्ट्रिंग की लंबाई l है, यहाँ x इक्वल टू l पे भी y जीरो है। ये दोनों एंड केसेस है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। By the second boundary condition, now if x equal to L, y is again 0. So just see what will happen. जब x L होगा तो y 0 होगा। So now this becomes 0. x L है, C2 sin PL and C3 cos CPT plus C4 sin CPT। यहां से आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, पुनः ये दो प्रोडक्ट जीरो है। यहाँ C2 जीरो है, C2 तीन प्रोडक्ट हैं, C2 sin PL एंड दिस, ये तीनों जीरो है। लेकिन अगर C2 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो होगा तो भी पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जीरो क्या हो सकता है, इसके जीरो होने से पूरा प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइन px है और यहाँ साइन pl है। इट्स ओके, मीन्स हियर C2 sin pl दिस, यहाँ तीन टर्म है, तीनों का प्रोडक्ट जीरो है। सो आइदर इट मे बी जीरो और इट मे बी जीरो और इट मे बी जीरो, but whenever this and this becomes zero, so now equation third becomes zero. It means the solution becomes zero. So what will happen in this case? In this case, we have to choose this becomes zero. Why? Because of in the given equation, this is sin PL and this is here sin PL. This is PX and this is PL. So this implies that from here sin
PL equal to 0. And whenever sin PL equal to 0, as you know, sin is periodic function. So now its period is n pi. So it is also be sin n pi for n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. For every value of n, 0, 1, 2, 3, for every integer, uh, whole number, you can say it becomes 0. Sin 0, 0. Sin pi 0. Sin 2 pi 0. Because of sin is a periodic function. So that's why from here, after comparing PL equal to n pi, so this implies that P equal to n pi by n pi by L. Here L is the length of the string. L is the length of the string which is attached in between two point AB whose length is L. And if the string is slightly stressed and leave it, then string is in vibration. So now from here, if P equal to this, so equation third becomes yxt is equal to C2 sin n pi x by L n pi x by L C3 cos n pi Ct by L plus C4 sin n pi Ct by L. This is the solution. This is the solution whenever we'll apply the boundary condition which is given by in the problem. यहां से आप देख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और इंक्लूड कर दिया जाए कि जब आप सभी को पता है एक स्ट्रिंग है, ऐसे प्रॉब्लम एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ यल है, जिसको दो पॉइंट OA के बीच अटैच किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मीन्स व्हेनेवर टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0. इट मीन्स द इनिशियल कंडीशन कैन बी टेकन whenever t equal to 0, del y by del t is equal to 0. Okay, and the next initial condition be whenever t equal to 0, y equal to fx. ये दोनों इनिशियल कंडीशन, अभी तो मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाया, ये दोनों इनिशियल कंडीशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं और उसके बाद इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करके दिखाते हैं। आफ्टर अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन व्हाट विल बी द इट्स पोजीशन। सो नाउ it can also be expressed like this: yxt equal to C2C3. C2C3 becomes this is a constant. After multiplying this, we will obtain C2C3, C2C3, or you can leave it. First applying the initial condition, then you will find that now
applying initial condition, whenever we apply initial condition, that is t equal to 0, del y by del t equal to 0. So this is fourth equation. If you differentiate with respect to t, we will obtain del y by del t is equal to, just see, this is c2 sine n pi x by l, and this is c3 cos n pi ct by l. जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन माइनस n पाई c बाई l, ये वैल्यू प्रीवियस में लिखी जाएगी c3 साइन n पाई ct बाई l इंटू, और क्या होगा, इंटू सॉरी प्लस c4, पुनः यहाँ हो जाएगा n पाई c बाई l इंटू c4 साइन का cos n पाई ct बाई l, ऐसा होगा. लेकिन क्या रहा है कि whenever t equal to 0 this becomes 0, so in this case this becomes 0, t equal to 0, it means whenever t becomes 0 this term becomes 0. Just see here, this term becomes 0 and this term becomes 1. आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि this is c2 sin n pi x by l, this is independent free from t, और क्या होगा माइनस n pi c by l into c3 into sin 0 because of t equal to 0, t becomes 0, plus n pi c by l into c4 cos 0. So after that this becomes c2 sin n pi x by l. From here c2 sin n pi x by l, और यहाँ से क्या होगा माइनस n पाई, ये वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज ऑफ साइन 0 इज 0, प्लस n पाई c l इंटू c4, ये होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा c2 c4, ये हो जाएगा n पाई c बाई l साइन n पाई x बाई l इंटू, ये होगा, आप देख सकते हैं c2 c4, दिस इज साइन n पाई x बाई l एंड दिस इज n पाई c बाई l, लिख सकते हैं हम यहाँ. फिर क्या होगा, आप इसको खूब देखें 0, आप यहां से कंसीडर करें, क्या c2 0 हो सकता है, नहीं, क्यों c2 0 हो जाने से ये पूरा का पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, क्योंकि c2 मल्टीप्लाइड है. क्या साइन n पाई x 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसको 0 हो जाने से भी ये सोल्यूशन 0 हो जाएगा. तो बचा क्या, फिर नाउ दिस इंप्लाइज दैट c4 इक्वल बिकम 0. c4 0 हो सकता है, क्योंकि c4 0 हो जाने से ये टर्म 0 होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म बचे रह जाएंगे. Okay students, now just see, after applying this initial condition we will obtain c4 equal to 0. Now equation fourth becomes, yxt is equal to c2 sin n pi x by l
and this becomes 0. So now into C3 cos n pi Ct by student. From here the next initial condition be whenever t equal to 0, y equal to a y fx. So next initial condition be if t equal to 0, y be fx. So then after, this is equation number 5th, t becomes 0. So now if t becomes 0, this becomes 0. This becomes 1 and this becomes fx. So fx is equal to c2 c3 sine n pi x by l. And now from here it can, this is both a constant, so fx can be regarded as summation an sine n pi x by l. This is the complete solution where a and b can be calculated by the Fourier 2 by l 0 to l a fx sine n pi x by l dx. By using this relation, you have learned in Fourier series also, an can be calculated by this way: 2 by l 0 to l fx sine n pi x by l into dx. And after calculating an, put the value of an from here to here, you will find the complete solution of the wave equation. This is complete solution of wave equation. This is complete solution of wave equation. It's okay, students? So in this way, today you have learned how to find the solution of one-dimensional wave equation by applying the initial condition as well as the boundary value condition. So this is the way by which you can solve any such type of problem जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से मिलता जुलता होगा. जहां वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का प्रॉब्लम कैसे समझ में आएगा कि है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की प्रॉब्लम समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि वहां ये लिखा होता है कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड fastened in between 2 point L apart. अब प्रत्येक प्रॉब्लम में ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सिर्फ चेंज होगी. ध्यान से सुने, ये टेक्निक में बताता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने का. क्वेश्चन जब कभी भी होगा इसका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन जब कभी भी अराइज होगा तो वहां स्ट्रिंग की बात की जाएगी कि एक स्ट्रिंग है जिसको 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेच किया जा रहा है और बांधा जा रहा है, जिसकी लंबाई बदल सकती है. प्रत्येक प्रॉब्लम की लंबाई अलग अलग हो सकती है. जब लंबाई चेंज होगी तो आप सभी को पता है इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी चेंज हो जाएंगे. जब लंबाई चेंज होगी, कभी कभी लंबाई पाई दे दिया जाता है. जब लंबाई चेंज होगी, ये एक स्ट्रिंग है, ये लंबाई पाई होगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगा. कंडीशन होगा y 0 0 t equal to 0 and y pi t equal to भी 0. मीन्स ये सिर्फ L की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी. मीन्स प्रत्येक प्रॉब्लम में लेंथ चेंज होगा. और क्या चेंज होगा? प्रत्येक प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा और हमेशा 0 होगी. भाई स्ट्रिंग को हमने बांध रखा है तो इनिशियली इट इज इन रेस्ट पोजीशन. सो नाउ whenever time becomes time at time t equal to 0, string is initially at rest. It means del y by del t is always 0.
इज ऑलवेज 0। और चेंज क्या होगा इसमें, तीसरा पॉइंट ये चेंज होगा कि जिस इनिशियल वेलोसिटी को हम दे के स्ट्रिंग को छोड़ेंगे वाइब्रेशन के लिए, वो अलग अलग होगा प्रत्येक प्रॉब्लम। इसका मतलब प्रॉब्लम के लिए चेंज क्या होगा, प्रॉब्लम के लिए चेंज होगा स्ट्रिंग का लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज होगा पहला। और दूसरा क्या चेंज होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एवरी प्रॉब्लम दीज 2 पॉइंट आर डिफर, विल बी डिफर। किसी प्रॉब्लम के लिए ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, हो सकता है ये अलग हो ये सेम हो दूसरे प्रॉब्लम के लिए। जैसा मैंने अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें बाउंड्री कंडीशन जो था, बाउंड्री कंडीशन था y0t इक्वल टू 0, ylt इक्वल टू 0। और इनिशियल कंडीशन क्या था, एंड इनिशियल कंडीशन क्या था, t इक्वल टू 0, del y by del t इक्वल टू 0, एंड एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू fx। मतलब आपको प्रत्येक प्रॉब्लम के लिए ये चेंज मिलेगा और ये चेंज मिलेगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स बी केयरफुल, बी अटेंटिव, शो ऑल द बेस्ट। इस तरह के प्रॉब्लम को आप देखें और एक्सरसाइज सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।